जो जो पहला चैप्टर है आपके नीट के सिलेबस के लिए, इट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. So by the end of this topic, we'll be able to understand what diversity means, what living world means, how and at what point we demarcate that this is a non-living object and this is a living object. Now when we demarcate that this is a living object, we cannot keep the things haphazardly. We cannot keep the organisms haphazardly. इसको ऐसे ही डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया. So what we need is a very systematic approach to study the diversity of the world when we talk about living things. Okay. So diversity can be political, social, economic. You all might have studied in civics. But here we are talking about diversity of the living world, that is the biological system which shows diversity. Okay? So we'll be more concerned with the diversity in the living organisms. So this is the syllabus of the NEET and you all must be having it. In the 11th class you have to study diversity in living world, structural organization in animals and plants, cell structure and function, plant physiology, human physiology, and in class 12 it is reproduction, genetics and evolution, biology and human welfare, biotechnology and its applications, and ecology and environment. Now first of all, let us define the term biology. Now whenever we use logy, जब भी जहाँ भी logy term use होता है, it is to study. उसका मतलब होता है to study. अब उसके आगे कोई prefix, उसके आगे जो word लगा हुआ है, that is a prefix. पीछे जो लगता है that is suffix. So here logy is the suffix and bio is the prefix. Now bio means life. So when we study about life, it is called biology. So we have to demarcate what life is. Now there are several terms in biology like cytology, immunology, physiology. So you will study all these aspects when you will study biology. Okay? So we will be coming across several such terms when we will keep on studying the things. Then life. What is life? So it is a property. It is a quality. A quality where we can demarcate between what is called living and non-living. And there has to be certain fundamental characters when we say that this is living. Okay. So what are those fundamental characters which demarcates that this side we are keeping the non-living and this side we are keeping the living. So there has to be certain properties, certain characteristics, and these should be very fundamental, salient. Okay. So these are growth, metabolism, response to stimuli, reproduction and consciousness. So these are the 5 basic qualities. So आप अपने पांचों finger पे इसको याद रखिएगा. These are the basic qualities or properties of life. Now let us study one by one each of these. So the first one is growth. Okay. Now what is growth? It is increase in mass. Okay, increase in mass. Now this increase in mass can take place in certain objects due to accumulation of certain particles also. But that is not growth. Okay,
जैसे कि आप कोई सब्सटेंस बाहर रख दीजिए और उस पर कुछ पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें उस पर गिर रही हैं, वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, आपने मास मेजर किया, देन इट इज इंक्रीजिंग, बट इज इट ग्रोथ, अ प्रॉपर ग्रोथ? नो. So what is the difference? It should be internal. There should be anything to induce the growth. So it should be internal. It should be due to cell division. And then if there is increase in mass, we say it is growth. And this is the property of only living substances, living organisms, not the non-living. So this is something which is very important, that there has to be internal process and cell division. Then if there is increase in mass, we say it is growth. Now one thing again which is very important, if you consider the plants, later on we'll classify कि plants क्या है, animals क्या है. Plants के growth को अगर आप देखो, it will be throughout life. Okay, so throughout life there will be growth in plants, but in animals it is limited. There will be a time when the growth will stop. Okay. Now, before this time comes, there is a phase called senescence. ठीक है, senescence, जिसमें कि एक प्रोसेस के द्वारा एजिंग होता है, and then the cells they start dying. There will be some kind of apoptosis and there will be death. So life sees growth and then senescence and then death. Some, like plants, they always keep on dividing and growing, but in animals it is limited. So question may be asked on this ground, और हमने उस दिन एक क्वेश्चन दिया भी. Next is reproduction. Now when we talk about reproduction, basically we say that organisms are producing their own type of forms. Okay, so when organisms produce their own type of form, that is reproduction. Now this may be simply by cell division, जैसे प्रोटिस्टम है ना, सिंपल सेल डिवीजन से हो रहा है, वहाँ पे अलग अलग उसको नेम देंगे, लाइक फिशन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ reproduction. Then reproduction is broadly divided into two, asexual and sexual. Asexual means that the two different mates are not needed, right? Male and female counterparts, they are not needed. A single cell can divide by a process and it can give rise to a new organism. So that is also reproduction. So there is increase in number of the cell. There is cell division taking place. And if it is sexual reproduction, then both male and female, they are needed, and then only the gametes will fuse and they will form a zygote. The zygote will then grow in size, differentiate and form the new organism. So there can be asexual reproduction or sexual reproduction. But if you consider the entire animal kingdom, there are diverse forms and you will find diverse types of processes taking place during reproduction. Okay, so we will study later these details, but here there are few examples like eggs. Okay, so that involves sexual reproduction. Then here you see fragmentation. Okay, in planaria you will see fragmentation, liver fluke. Fragmentation also takes place. So if you divide it into fragments, then each fragment will grow into a new organism. Then hydra, there is budding. So by the process of budding, they can reproduce. So all these are asexual reproduction. Okay, so no mates are required. Some specific type of cells, they start budding and then they will detach from the parent
and they will form a new organism. Now this is an elaborate reproduction process of human. So it has a kind of sexual reproduction, then it is showing viviparity. So we'll come across these terms when we'll study the reproduction process in detail. But this is a very important and fundamental character of life. Okay? Next is metabolism. There are several chemical reactions going inside the living systems. Some of them help in building new material, new substances, bigger molecules from smaller molecules, जैसे कि nucleotides. Okay, and these help in the formation of nucleic acid, DNA or RNA. So this is a process of synthesis. Okay. Now these processes they will require energy. जब भी synthesis हो रही है कोई बड़ा substance बन रहा है, it requires energy. And such a process, you will see that smaller molecules plus energy, the arrow is facing this way. Okay? So this is called anabolism. और दूसरा जो process है वो है catabolism, जिसमें कि बड़े molecules टूटते हैं into smaller molecules and energy is liberated. So the living organisms use that energy again for various other processes. Okay. Energy may be needed again for building DNA, है ना? तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो एनाबॉलिक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कैटाबॉलिक है। तो आगे अभी जब आप और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, यू विल कम अक्रॉस सर्टेन टर्म्स एंड यू विल नो दैट व्हिच ऑफ द प्रोसेसेस आर कमिंग अंडर एनाबॉलिज्म एंड व्हिच आर कमिंग अंडर कैटाबॉलिज्म. Now there is a term metabolism. This includes the sum total of all the chemical reactions taking place inside the living system. Okay? So this is the thing. Next is response to stimuli. Now this is something which is again very important, because our behavior, the behavior of the living system shows response to stimulus. If there is heat, some of the organisms will show repulsion, isn't it? If there is extreme cold, repulsion. Siberian birds, they migrate to our country. Why? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है. तो वो स्टिमुलस है उसके लिए कि अभी टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है और अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है. सो दे स्टार्ट माइग्रेटिंग, isn't it? उसी तरह से अगर आप कोई बहुत ही हीटेड सरफेस को टच करते हो, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो स्विंग करके वहाँ से हटता है. सो दिस इज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. नाउ स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. फिजिकल है जैसे टेम्परेचर, ठीक है, हीट. केमिकल, एसिड को फेंके किसी के ऊपर क्या होगा, है ना, बहुत इरिटेशन होगा. तो दैट विल बी केमिकल. एंड देन बायोलॉजिकल क्या है, वो फिजिकल. ऑल द रेडिएशंस, रेज, दीज आर फिजिकल. तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इसमें से बायोलॉजिकल क्या है, फिजिकल क्या है. सो एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, a mosquito coming across you, that will create a stimulus. वहाँ से आप हटोगे because it is causing irritation. You know that it may cause disease if it stings. Scorpion देख लोगे तो आप भागोगे. So that is also biological. And not only that, sometimes we are not able to see a biological agent. Okay, we are not able to see a biological agent, but still some kind of sense
helps us understand that there is some kind of biological agent by some smell, है ना, फेरोमोन्स वहाँ पे काम, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट फेरोमोन की बात करेंगे तो वो केमिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, बट इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय ए बायोलॉजिकल एजेंट। तो उस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि एग्जैक्टली क्या पूछे, ठीक है। फेरोमोन जो रिलीज हो रहा है वो केमिकल सब्सटेंस हो गया और फेरोमोन के कारण रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। मेकिंग में हेल्प करता है, फूड फाइंड करने में हेल्प करता है, हनी भी एक वैगल डांस करके फूड तक जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक महक है जिसकी वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो स्मेल है दैट इज एक्चुअली केमिकल, बट इट मे कम फ्रॉम ए बायोलॉजिकल सिस्टम। तो क्या रिलीज कर रहा है तब हो जाएगा बायोलॉजिकल एजेंट, लेकिन क्या रिलीज हो रहा है दैट विल बी ए केमिकल, ओके। सो दिस इज वन थिंग। देन देयर आर एग्जांपल्स लाइक देयर आर सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना। तो उसके अंदर ये सेंस है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके पास आएगा पिक्चर प्लांट में और उसका लिड बंद हो जाता है ना, सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। देन माइमोसा प्यूडिका, है ना, उसके लीव्स जो टच मी नॉट जिसको बोलते हैं, ओके। तो आप आगे इसको पढ़ोगे कि किस तरह से टैक्सिस मूवमेंट होती है, टैक्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। So there are movements and these are due to responses to the stimulus. Then next is consciousness. Consciousness is a kind of awareness. You are conscious that she is sitting beside you. Okay? अगर ये सीट खाली कर दी जाए तो शायद आपका बिहेवियर कुछ और होगा, लेकिन इस पे कोई बैठा हुआ है तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा। कुछ दिन बाद आप इसको और अच्छे से जानोगे तो आपका बिहेवियर अगेन चेंजेस। सो बेसिकली दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन। सो हियर कम्स द इंटरैक्शन एंड इट मे बी बिटवीन टू सेल or two different organisms, interaction with physical chemical agents which are around us or the ecosystem, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस को डिफाइन करती हैं। फूड देख के भी किसी को भूख लगता है ना, डॉग को, और उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो उस पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं Pavlov। सो बेसिकली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज अराउंड अस एंड हाउ वी हैव टू बिहेव। तो इंटरनली सेल भी देखता है कि उसके अराउंड क्या है और उसे कैसे बिहेव करना है, अदरवाइज सेल में सिग्नलिंग्स नहीं होगी। एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल के और उसके बाद पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके और फिर वहाँ से वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो कितने लेवल पे इंटरैक्शन है, एंड दीज ऑल थिंग्स लीड्स टू कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस विच इज इन द ह्यूमन। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ओके। तो हम उसी वे में बिहेव करते हैं। Now comes biodiversity. तो diversity का मतलब हो गया various types of forms, and when we talk about various types of forms having life, that comes under biodiversity, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है। और अब जब हम ये जान गए कि बहुत सारे फॉर्म्स जिसके अंदर वो 5 क्वालिटीज़ होगी वो बायोडाइवर्सिटी का सम टोटल बनाती है, ओके। और सभी का जेनेटिक सिस्टम है, जेनेटिक मेकअप है, जो कि एक जीन पूल है। और अगर इसमें से जीन पूल धीरे धीरे हटता गया, ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट होते गए, तो जीन पूल घटता जा रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग। अब इस बायोडाइवर्सिटी के स्टडी के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है।
we need a systematic approach. Now few scientists they started to do this. मायर ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे हैं उसमें सभी में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिससिमिलैरिटी है, एंड ही एक्चुअली वॉज द फाउंडर ऑफ द सिस्टमैटिक्स। लेकिन बाद में फिर कैरोलस लिनेयस ने उसको ज़्यादा अच्छे से उस सिस्टम को डेवलप किया एंड ही गेव द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। अब यहाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, लाइक कोई आम ले लो, सब लोग खाते हैं, अभी सीजन भी आ रहा है, उस आम का कई एक नाम है ना, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है, लेकिन है ना लंगड़ा जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, अब उसी को आप दिखा चले जाओ तो वहाँ पे उसको मालदा बोलेंगे, है ना। लेकिन क्या है, टेस्ट में भी फर्क, टेस्ट में क्यों फर्क, क्योंकि एनवायरनमेंट और जीन के इंटरैक्शन से उसका टेस्ट डेवलप है ना, लेकिन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज और उसका नाम यहाँ पे लंगड़ा है, वहाँ पे मालदा है और कहीं और सफेदा भी है। तो इस तरह से अगर आप पूरे इंडिया में कोई चीज़ मिल रही है और उसका 100 नाम हो जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लोकल नेम। ओके, सो a system of nomenclature was developed and this was developed by Carolus Linnaeus। अगर हम ये वर्ड बोल रहे हैं तो हम इसी चीज को मीन कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। Now, when we talk about this systematic approach and you are being given any living organism, what you have to do for the first time? You have to identify it। ठीक है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिखाई गई है और उस दिन मैंने बताया भी था कि ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी के बेसिस पे सबका आधार कार्ड है, किसी दो का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, वी ईच हैव अ यूनिक फिंगरप्रिंट। उसी तरह इंटरनली अगर हम अपना डीएनए का बात करें तो उसकी जब फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो टेक्निक है, तो वो भी आपका स्पेसिफिक होता है और आपकी पैटर्निटी टेस्ट भी उससे हो जाती है, पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्ट हो जाती है। सो this fingerprint is shown here that each organism has its own identifying character। I am Kumul, you all know, है ना। तो मेरे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि अब आप लोग हमें कहीं भी देखोगे तो जानोगे कि हाँ ये कौन, ठीक है, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। सो दैट थिंग इज लाइक यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दैट organism, that living object, ठीक है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं। कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसका इंटरनल कैरेक्टर हम बताना है ना। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में जो सबसे यूनिक उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर है, दैट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब दो कोड है, एक इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए, दूसरा ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, सो दिस two codes or two schools, they have developed the system of nomenclature, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए, and it is accepted world over। ओके, अब इससे हम लोग ये जानेंगे इस स्लाइड से कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को, लिविंग
वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको, तो फिर हम उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखते हैं। क्या वो पहले से यूज में है, वो पहले से ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड है, तो उसके बाद हम उसको देखेंगे कि हाँ इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑलरेडी दिया है। अगर नहीं तो फिर हम जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसका फोटोग्राफ्स भेजेंगे और उसके बाद हम वहाँ से उसको आइडेंटिफाई करवाएंगे। वो आपको बताएगा कि दिस इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, या वो बताएगा कि नहीं ये आइडेंटिफाइड नहीं है, ये एक नया स्पीशीज है। और तब क्या होता है कि हो सकता है आपका नाम उस स्पीशीज के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, बिकॉज यू हैव फाउंड अ न्यू स्पीशीज। ओके, तो ये एक सिस्टम है जब स्पीशीज की नेमिंग की जाती है। नाउ अ सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स दैट देयर इज अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक नेम। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, नीचे देखो काफी सारा लिखा हुआ है, मैग्नीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो इसमें जो पहला नाम है मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा क्या है? जीनस। इंडिका क्या है? स्पीशीज। लिखने का तरीका क्या है? we write it in italics. Okay, we write it in italics. but हमें italics लिखना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं। रूल क्या है? मैग्नीफेरा को अलग, इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, मैग्नीफेरा जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से, और इंडिका जब भी लिखेंगे तो आई स्मॉल होगा। दैट मीन्स जो जेनेरिक नेम होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्पीशीज का जो नाम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें इस स्लाइड में यहाँ पे है, और कैरोलस लिनियस ने इस सिस्टम को दिया था। इट इज़ कॉल्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन कम टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस को हम एक ग्रुप में रखते हैं। अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं, इवन इन केमिस्ट्री भी क्लासिफाइड, इवन इन फिजिक्स भी क्लासिफाइड है ना। कैसे? उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं ना। क्या प्रॉपर्टी देखते हैं? लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमोर्फस फॉर्म है, किस तरह का फॉर्म है, क्या कलर है उसका, ये सारी चीज को डिफाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं एक कैरेक्टर। उसी तरह से अगर हम फिजिक्स के लेवल पे बात करें तो ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, लाइट उससे पास करेगा कि नहीं करेगा, ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, उसकी हम और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जैसे वो हीट के लिए क्या है उसका, हीट को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर या हीट का इंसुलेशन करता है, इंसुलेटर है या नहीं है, इस तरह की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो उसी तरह से हम बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या देखते हैं? We again see the properties. Now what are those properties? जैसे उसका बॉडी प्लान क्या है, उसकी सिमेट्री क्या है, ठीक है, सीलोम है कि नहीं है, अगर है तो किस तरह का सीलोम है, बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं ब्रॉड लेवल, एंड वी गो ऑन क्लासिफाइंग दी ऑर्गेनिज्म। अब एक एक जो स्ट्रैटा है असाइंड, एक एक जो स्ट्रैटा है, दैट इज कॉल्ड द टैक्सॉन। जैसे कि किंगडम, डोमेन, सबसे पहले डोमेन, उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। सो ऑल दीज आर टैक्सॉन्स। तो यहाँ पे ये टर्म हो गया कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, टैक्सॉन का क्या मतलब है, हर यूनिट जो है वो टैक्सॉन। देन टैक्सोनॉमी क्या है? वो साइंस जो डील करता है with organisms and classification. So that is the science of taxonomy, and the father of taxonomy, Carolus Linnaeus. So he is regarded as the father of taxonomy.
Now another word, systematics. Now this is a Latin word and it is derived from the word systema. Systema means systematic. So having a systematic approach, and it is the systematic arrangement of living organisms. Okay, so whenever we study about living organism, we have a systematic approach. We should have a systematic approach. So systematics is the study of the diversification of living forms, both past and present. Past and present क्यों? Why past? For ancestry. Okay. To establish the phylogenetic relationship, है ना? किसी के पास नोटोकॉर्ड है, किसी के पास नहीं है. तो एक phylogenetic relationship हम establish करके बोल सकते हैं कि these are invertebrates and these are chordates. So we have to look for the past also, कि अगर उस particular phylum में अब हो सकता है कि बहुत कम forms alive हो, लेकिन past में बहुत सारे form थे और उनमें धीरे धीरे कैसे changes आए. Okay, so some of them may be fossilized, some of them may be a living fossil, and some of them are still alive. तो क्या उनमें कोई relationship है? So we have to look for the past as well as present, and then we should have a systematic approach. We should establish a relationship among all the forms. तो लिनेयस ने ये बुक पब्लिश किया था, सिस्टेमा नेचुरे. ठीक है. अब जो हम लोग टैक्सॉन्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. So we basically categorize the animals into different units. So these words which we use, these are called the taxonomic categories. It is the unit that is used, like domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So these are taxons and these are the taxonomic categories. So each level represents a hierarchy. आप haphazard way में नहीं चल सकते कि एक जगह species लिख दिया, उसके बाद उसके order पे चले जाते. So you have to follow either the ascending or the descending order. Now let us see one by one what these mean. एक यहाँ पे एग्जाम्पल पहले देख लें, लाइक कॉमन नेम मैन, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो हो गया, सेपियंस स्पीशीज हो गया, फैमिली होमिनाइडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा. अब जब हम लोग इस तरह से इनको असाइन करते हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिसिटी है, हमने ऐसे ही नहीं डाल दिया, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसको लेके चलते हैं. तो अब फाइलम की तरफ देखो, कॉर्डेटा, दैट मीन्स 3 सैलिएंट फीचर ऑफ कॉर्डेट. कभी ना कभी लाइफ में उसके पास जरूर होगा, तभी उसको कॉर्डेटा में रखा गया है. क्या क्या? नोटोकॉर्ड, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड स्पेयर्ड गिल स्लिट्स इन फेरिंक्स. तो ये 3 कैरेक्टर उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में कभी ना कभी आया होगा. दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट इन फाइलम कॉर्डेटा. नेक्स्ट इज क्लास मैमेलिया. Why it has been kept in class Mammalia? Okay, presence of mammary gland, presence of hair and presence of pinna. इसमें सबसे important character क्या है? Pinna. ठीक है? So it is the pinna which is most important. Hair also is very important. And then comes the mammary gland. Though the name is Mammalia. Though the name is Mammalia, but will go in this kind of order. Okay? तो इस तरह से इसको Mammalia में रखा गया. अब उसके बाद order Primata. Opposable thumb. So this is one of the very important character of primate. सभी मैमल में आपको ये नहीं मिलेगा, opposable thumb. जो हम लोग होल्ड कर पाते हैं किसी चीज को, सभी नहीं करता. तो ऑपोजिबल थंब एंड देन इरेक्ट पोस्चर, होमिनाइडी, इरेक्ट पोस्चर, और इसी से फिर जीनस होमो एंड सेपियंस. ओके, तो इस तरह से
हर टैक्सॉन का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है और ये हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। अब स्पीशीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने क्यों सेपरेट किया स्पीशीज? तो ये वैसा ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकते, जो ब्रीड कर सकते, उन्हीं को हम स्पीशीज में कंसीडर करेंगे विच कैन ब्रीड। अब एक एग्जाम्पल था यहाँ कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में ब्रीड कर लेते हैं बट दे आर नॉट ऑफ द सेम स्पीशीज। कोई एग्जाम्पल बताओ? जो म्यूल है ना, तो ये कुछ एक्सेप्शंस, अदरवाइज देयर इज इंटरब्रीडिंग व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज। तो ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट दे कैन इंटरब्रीड इन अ पॉपुलेशन। देन वी से दैट दे आर ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका इज अ स्पीशीज, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम स्पीशीज पोटैटो, पैंथेरा लियो, उसी तरह पैंथेरा टाइगरिस लियो। तो टाइगरिस जब बोलेंगे तो टाइगर, लियो जब बोलेंगे तो लायन, है ना। तो पैंथेरा जीनस है तो उसमें आपको ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लेकिन स्पीशीज जो है स्पेसिफिक हो गए। ए लायन कैन नॉट मेट विथ ए लेपर्ड, ए लायन कैन नॉट मेट विथ ए टाइगर, so they are of different species. Next is genus. Now a close relationship among species, then we call it of the same genus. जैसे कि सोलेनम, सोलेनम ब्रिंजल के लिए भी यूज किया जाता है, पोटैटो और टमाटो। तो सोलेनम जीनस है और ये कई सारों के लिए यूज किया जाता है। उस तरह से पैंथेरा, ठीक है, लेपर्ड, टाइगर और लायन के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप है विच इज कॉल्ड जीनस। जीनस के ऊपर के लेवल पे अगर हम जाएं तो फैमिली। अब बहुत सारे जो क्लोजली रिलेटेड जीनस हैं जिनका है उनको एक पर्टिकुलर फैमिली में रखा गया है। अगर आप प्लांट्स की बात करो तो फिर वहाँ पे होगा कि उनका फ्लावर सिमिलर टाइप का होगा, उनके लीफ का अरेंजमेंट सिमिलर टाइप का होगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स देखते हैं हम लोग, उनका कुछ वेजिटेटिव पार्ट एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड देन वी कीप इट इनटू अ फैमिली। Family is not that important for animals, but family is very important when we classify the plants. Okay. Next is order. A group of closely related family, it is called the order, and in animals we give much significance to order. ठीक है? तो कहीं जब आप फर्दर जब एनिमल किंगडम को हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऑर्डर के लेवल तक देखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर के लेवल पे जाके हम लोगों को कुछ बेसिक डिफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे एम्फीबिया में एपोडा, यूरोडेला, क्या डिफरेंस है? 3 है ना ऑर्डर्स, एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। नाम से ही आपको पता चल जाए। एपोडा नो लेग, ठीक है, यूरोडेला दे हैव अ टेल, ऐसा एम्फीबिया जिसमें टेल होगा, एंड एन्यूरा इसमें टेल नहीं होगा और लिम्ब प्रेजेंट। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है वहाँ पे, और इस वे में हम लोग उसको ऑर्डर में बांटते हैं। 3 ऑर्डर में एम्फीबिया को बांटा गया है। इसी तरह से हम लोग दूसरे एनिमल्स के लिए भी जब स्टडी करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे वो ढूंढने का, वो पॉइंट्स, वो कैरेक्टर्स ढूंढने का कोशिश करेंगे कि किस आधार पे इनको ऑर्डर में बांटा गया है। देन उससे ऊपर है क्लास। ठीक है, अब और क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं उनको एक क्लास में रखा गया है। जैसे एम्फीबिया एक क्लास है, सारे एम्फीबियस एनिमल जिनका डुअल मोड है लाइन का, इसको उसमें रखा है। देन फाइलम, अब बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को फाइलम में रखा गया है। जैसे कॉर्डेटा एक फाइलम है जिसमें 3 सैलिएंट फीचर्स वाले के होंगे, उनको कॉर्डेटा बोला जाएगा।
और फिर किंगडम, तो किंगडम हो गया। तो अब और ब्रॉड लेवल पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे सेल मोड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल मोड। ओके, देन न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ। So this is the ordered arrangement: species, genus, family, order, class, phylum और division and kingdom। ये phylum जो है animal kingdom में important है और उसको plant kingdom में हम लोग division करते हैं। Okay? Plant kingdom में division is given much more importance। अब यहाँ से एक नई चीज शुरुआत हो रही है कि जब हम लोग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि जीनस है, स्पीशीज है, ये है, वो है, ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, तो हम अपने मन से तो बना नहीं सकते। हमें एक पास की चीज़ों को देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उस वे में हमें एनिमल्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा या प्लांट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो हम कहाँ से हेल्प करें, हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें? हम अपने हिसाब से तो कर नहीं सकते। सो वी नीड certain aids. These aids are the taxonomic aids. ये हमें taxonomic classification करने में हेल्प करता है। हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला और हम चाह रहे हैं कि उसका हम क्लासिफिकेशन करें, तो taxonomic aids will help you to classify the organism. Now they can be of various types and these are the bioresources which are kept in different ways and they help us in classifying or assigning a particular taxon or a particular name to an organism. Okay, तो ये क्या है बेसिकली? ये स्टोर हाउसेस हैं, ठीक है, और इन स्टोर हाउसेस से हम लोग मदद ले सकते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं स्टोर हाउसेस के, पहला है हर्बेरियम। ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है, एनिमल के लिए नहीं, ठीक है। वी यूज इट फॉर प्लांट्स। अब इसमें क्या सिस्टम फॉलो किया जाए? तो पहली चीज क्या है कि आप जाओ प्लांट कलेक्शन करो, ठीक है। तो प्लांट कलेक्शन जब आप कर रहे हो तो यू हैव टू टेक सर्टेन वेजिटेटिव पार्ट्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट क्या है? उसका रूट हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है, उसका लीव्स हो सकता है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, सीड। ओके, सो यू कलेक्ट इट ऑन अ होल। इन सारे पार्ट्स को लेके आप आओ। नाउ व्हाट यू डू? You have to dry it, you have to press it, okay, then maybe you have to sprinkle some kind of insecticide on it, ठीक है। तो ये सारा चीज करने के बाद उसको एक हर्बेरियम की शीट पे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद उसको हम लोग एक ऑर्डर्ड वे में उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड वे में उसके बारे में लिखते हैं। तो हर्बेरियम क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग प्लांट्स ऑन शीट्स, ऑन हर्बेरियम शीट्स। दे आर सम काइंड ऑफ स्टोर हाउसेस विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। और जब हम प्लांट का स्पेसिमेन ले आए, उसको माउंट कर दिए, तो उसके बाद सीरियल नंबर भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक हम मान के चलेंगे कि 1 से 100 तक हमने बनाया, तो फिर उसका एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल में उसको रखेंगे। फिर सेकेंड फाइल होगी, फिर उसमें क्या होगा 101 से लेके 200 एंड इन दिस वे देन वी मेक एन इंडेक्स। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ प्लांट। अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाइए जहाँ पे कि हर्बेरियम्स है, जैसे कि लखनऊ में है NPR, बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरे फील्ड में विजिट करते रहो और प्लांट को ढूंढते रहो। तो आप उनके उस लाइब्रेरी में जाइए जहाँ हर्बेरियम रखा हुआ है, आप अपना लेके जाइए एंड दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, क्योंकि उनके पास पूरा इंडेक्स हर्बेरियम का। ओके, सो इफ
helps you in identifying an organism. Okay. Now, जो succulents हैं, succulent जान लो? क्या? जैसे कैक्टस, उसी तरह के और भी प्लांट्स हैं, तो क्या हम उसको भी उसी तरह ड्राई करके प्रेस करके रखेंगे? तो उसे फॉर्मेलिन में रखा जाता है. इट इज फॉर्मेलिन सॉल्यूशन. FAA, फॉर्मेलिन एसिटिक अल्कोहल, 4% फॉर्मेलिन, और FAA, फॉर्मेलिन एसिटिक अल्कोहल. फॉर्मल्डिहाइड से ये सॉल्यूशन बनता है. अब ये लेबलिंग का तरीका है और ये एक हर्बेरियम. यूजुअली स्टेम, लीफ और फ्लावर ये होना जरूरी है, बिकॉज ऑलवेज बहुत बड़ा प्लांट है तो हमें नहीं बताएगा. ठीक है, तो स्टेम लेंगे, लीव्स लेंगे और उसके फ्लावर्स लेंगे. और ये पूरी हर्बेरियम शीट है और देखो वहाँ पे एक टैग है जो एरो से दिखाया गया है. सो दैट इज द प्लेस वेयर वी राइट अबाउट इट. ठीक है, और क्या क्या लिखते हैं? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ विच स्पेसिमेन प्लांट ओरिजिनेटेड. कभी जब इसकी ओरिजिन हुई होगी, पहली बार इसकी लेबलिंग की गई होगी, तो स्पेसिफिक हुआ होगा कि यहाँ इन लोगों ने इसको ढूंढा था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ढूंढा था. देन नेम ऑफ द फैमिली, देन बोटानिकल नेम ऑफ द प्लांट, लोकल नेम, लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, अगर आपने कलेक्शन किया तो कहाँ से किया, डेट ऑफ कलेक्शन, देन हैबिटेट ऑफ द प्लांट. हैबिटेट क्या है? किस तरह का एनवायरनमेंट है ना. आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ के हैबिटेट के बारे में लिखोगे, वहाँ से अगर कोई प्लांट लाए हो. टेम्परेट में जाओगे तो वहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जाओगे तो वहाँ, तो ये शो करेगा कि उसका हैबिटेट क्या है. देन फील्ड नोट्स एंड कलेक्शन नंबर. फील्ड नोट का मतलब है कि उस जहाँ से आपने लिया वहाँ आपको और क्या चीज़ें मिली, शॉर्ट में लिखते हैं. और मेन है कि आपने जब कलेक्शन किया तो आप जब कलेक्शन के लिए जाइएगा तो क्या एक एक पौधा लेके आइएगा? आप किसी दिन बाहर गए फील्ड वर्क करने, तो मे बी यू टेक एटलीस्ट 20-25. ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्लास्टिक बैग्स पहले से लेके जाओगे और एक पौधा का सारा पार्ट एक प्लास्टिक बैग में लिया, उसमें नंबर 1, नंबर 2. सो दिस इज योर कलेक्शन नंबर एंड नेम ऑफ द कलेक्टर. अगर आपने कलेक्ट किया है तो आपका नाम. और जब ये हो जाएगा तो जब आप कैटलॉग बनाओगे, ठीक है, तब आप कैटलॉग नंबर भी दे सकते हो. इसको मैंने इस कैटलॉग में, इस फाइल में. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी इंडेक्स. नेक्स्ट इज बोटानिकल गार्डन. यहाँ पे लाइव प्लांट्स आपको मिलते हैं और इजीली आप जा करके वहाँ देखते हैं और बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक अप्रोच से प्लांट्स को रखा जाता है. उनका नेम, जो जीनस और स्पीशीज है वो लिखा होता है, उनकी फैमिली लिखी होती है, ऑर्डर लिखा होता है. सो एवरीथिंग इज टैग्ड ऑन दैट प्लांट. एक लेबल साइड में रहेगा, या बहुत बड़ा प्लांट है तो पास में एक साइड में उसके लिए कार्डबोर्ड या टिन पे पेंट करके लिखा होगा. ओके, so you can go and you can see all the plants there और it's very beautiful और बहुत ही well organized होता है. ये बेंगलोर का बदरघट्टा नेशनल पार्क है. ठीक है, दिस वन मैसूर का है, कलकत्ता का है. तो इस तरह से यहाँ पे बस एक ट्रिगर मैंने किया है कि आपको एक लिस्ट बनाना है. एटलीस्ट 20 such botanical gardens of India. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, कि किस स्टेट में कौन सा है, उसका नाम क्या है. तो ये आपका होमवर्क. ठीक है, हाँ, बोटानिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया. इसका नाम एक सीरियल क्रम में स्टेट वाइज थोड़ा सा आप लिखिए, इम्पोर्टेंट जो नेम्स हैं.
देन नेक्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट या होल ऑर्गेनिज्म इन ड्राइड फॉर्म, जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, ड्राइड फॉर्म या फॉर्मल्डिहाइड में प्रिजर्व करके अगर हम उसको शो के लिए बनाते हैं, so that is called museum. It is a collection of plants or animals, but they are dead, life नहीं है, किसी वे में प्रिजर्व, या तो उस पर हम इंसेक्टिसाइड्स डालकर उसको प्रिजर्व करते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड के अंदर रख के, फॉर्मलिन के अंदर रख के प्रिजर्व करते हैं, या अगर उसका केवल स्किन मिला है तो उसके अंदर हम लोग फिलिंग कर देते हैं, जैसे डायनासोर्स का मॉडल्स रखा गया है तो फिलिंग करके रखते हैं। ओके, सो दिस इज अ कलेक्शन, बट इट विल नेवर हैव लाइव ऑर्गेनिज्म, इट कैन हैव मॉडल्स, okay, and it can have dead animals but preserved in a proper way. तो इस तरह से ये एक हैदराबाद का है सलार्जंग म्यूजियम। देन ये इंडिया म्यूजियम कलकत्ता का है, ये पूरा देखो रेप्टाइल्स कितने अच्छे से यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारे जो है ये फॉर्मलिन में रखे हुए हैं, ये भी कलकत्ता का है। ये डायनासोर का देखो जो पूरा बोन है वो इस तरह से है, और वो भी कलकत्ता का ही म्यूजियम का है, वो मैमोथ है, मैमोथ देखो कितना बड़ा उसका केक होगा, ठीक है। सो अब म्यूजियम ऐसी चीज है कि स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भी सेट कर सकते हैं। अब हम लोग अगर जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये प्रोटोजोआ, पॉलीमेरा, इस तरह से हम हायर ग्रेड्स पे चलेंगे, लेकिन हम अगर उनको एनिमल्स नहीं दिखाएंगे तो इट इज यूजलेस। साइंस हम तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब हम अपने आप के सामने चीज़ों को देखें। अब सारे स्टूडेंट को लेके अगर हम फील्ड में गए तो हो सकता है कि एक आध गार्डन रिजर्व मिल पाएगा, एक कुत्ता मिल जाएगा, एक गाय या बफेलो मिल जाएगा, है ना। तो वी कैन नॉट शो देम एवरीथिंग। तो इसलिए इंस्टीट्यूट में भी छोटे लेवल पे म्यूजियम्स बनाए जाते हैं और स्टूडेंट्स को वो दिखाया जाता है सो दैट दे कैन सी दी एनिमल्स। देन जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स बेसिकली एनिमल्स के लिए है, बट देयर आर प्लांट्स आल्सो। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो वहाँ पे बनाए रखना है, तो प्लांटेशंस भी होती है, बट केंद्र क्या है उसका? एनिमल्स। और वहाँ पे भी एनिमल को प्रॉपर जो उनका हैबिटेट है वो प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग होती है, सो दैट इफ यू गो एंड सी देन यू कैन आइडेंटिफाई देम, यू कैन नोट डाउन सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर उसको हम देख रहे हैं तो बॉडी पे मान लो क्या पैटर्न है। जेब्रा के लिए तो हमेशा सोचते हैं अच्छा ये जेब्रा लाइन में बना हुआ है, इस तरह का जेब्रा होगा। जब आप जाओगे देखोगे तो कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है उसके बॉडी के ऊपर, तो वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना, पैंथेरा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसका जो बॉडी का पैटर्न। उसके बाद आप मंकीज देखो तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मंकीज। लंगूर है, बहुत तरह का वेराइटी है, तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? एक छत के नीचे जिसको कहते हैं, तो वहाँ छत छोटी छोटी बनी होती है, एक एक एनिमल के लिए अलग अलग, और बहुत बड़ा एरिया होता है, और वहाँ पे आप बहुत सारे एनिमल्स को देख पाओगे। तो ये नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में, ठीक है, वो गुजरात का है, और ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो कि कितने जगह पे ये जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। तो इसमें भी आप थोड़ी लिस्टिंग करना। वैसे अभी एक चैप्टर जब हम लोग सैंक्चुरी, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो वहाँ पूरी लिस्ट हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी से अगर आप ये नोट्स बनाओगे तो यू विल हैव एम्पल टाइम। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ नाम भी लिखा है, जूलॉजिकल पार्क मैसूर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, त्रिवेंद्रम जू, चेन्नई जू। अब हमेशा क्या पॉसिबल है
कि हम बैंगलोर जाके और बन्नागट्टा नेशनल पार्क घूमें एनिमल्स को देखने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, तो हाँ, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब नेक्स्ट है की। ये बहुत इम्पोर्टेंट एड है की। चाबी क्या काम करती है? ताला को खोलने की। आपके पास अभी क्या है, एक एनिमल पकड़ के लाए हैं, वो एक ताले की तरह, आप उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे ना। धीरे 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 आप उसको ओपन करते जाओ एंड देन यू विल कम टू नो कि वो किस किंगडम का है, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, बाय स्टडीइंग इट्स कैरेक्टर। एक एक करके कैरेक्टर निकालते जाओ, तभी तो जान पाओगे। अब इसके लिए जैसे इंडिया में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कैलकाटा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा एनिमल मिला और आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो यू सेंड अ फोटो टू द जेडेसाई, वो पूरा आइडेंटिफाई करके आपको भेजेगा। जेडेसाई के पास ऐसा क्या है, उसके पास ये की है, वो चाबी है जिससे वो सारे कैरेक्टर्स को अनलॉक करता है। अब हर टैक्सॉन के लिए एक की होता है। टैक्सॉन क्या हुआ, जैसे किंगडम, किंगडम की की हो गई। अब किंगडम के अंदर फाइलम, तो हर फाइलम के लिए की होगी। हर क्लास के लिए अलग अलग की होगी, हर डिवीजन के लिए अलग अलग की होगी। की क्या है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है की में, कॉन्ट्रास्टिंग वे। कॉन्ट्रास्टिंग क्या हुआ, एक सीड ले लिए, राउंड है या रिंग है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ये जो दोनों कैरेक्टर है इसको कपलेट बोलते हैं। तो इस तरह से कपलेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं और आप एक एक करके अपने ऑर्गेनिज्म को उस कपलेट में छांटते जाइए, ठीक है। इसका सीड जो है वो राउंड है, चलो ये राउंड वाले पे टिक लगाए, ट्विंकल हट गया। अब राउंड सीड वाले को फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में ले जाए, जैसे पॉइजनस नॉन पॉइजनस। इसमें अगर हम डिमार्केट करना चाहें तो हम पहला कैरेक्टर क्या देखेंगे, इसका टेल, ठीक है। अगर टेल सिलिंड्रिकल है तो मोस्टली नॉन पॉइजनस। अगर टेल एकदम टेपरिंग है तो पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ छाट तो दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे तो उसका बेली देखेंगे, बेली मतलब स्टमक की तरफ का उसका स्केल्स देखेंगे। अब वो स्केल क्या पूरा यहाँ से यहाँ लैटरल तक जा रहा है या यही एंड हो गया, लैटरल अलग है या छोटे छोटे स्केल्स। ये तीन कैटेगरी आपको मिलेगी। अब अपने स्नेक को फिर से देखो, अच्छा ये इस कैटेगरी में है, फिर उसका नेक्स्ट की है। तो इस तरह से पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड कपलेट्स एंड देन we verify that this particular organism is having this particular character in this couplet, ठीक है। और इस तरह से करते हुए हम लोग अपने एनिमल को आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं और उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी देते चले जाते हैं। जैसे ये इस किंगडम का है, ये इस फाइलम का है, फाइलम की उठाएंगे और उस फाइलम के कैरेक्टर्स को उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाता है और एक स्टेटमेंट सेलेक्ट, ठीक है, और उन दो स्टेटमेंट को कपलेट बोलते हैं। हर स्टेटमेंट को सेपरेटली लीड बोला जाता है, लीड, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट, कपलेट का एक स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड लीड और जो दोनों स्टेटमेंट है इट इज कॉल्ड कपलेट, इट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड वी कीप ऑन गिविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड वी कीप मूविंग अहेड। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा क्या है, फाउना क्या है? फ्लोरा इज प्लांट, तो प्लांट का क्या है, कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड इट्स हैबिटेट ऑल्सो।
और यहाँ टाइम भी डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी जाए और जाके यहाँ काउंट कर लिए, उसका हम टाइम नहीं स्पेसिफाई करें, बिकॉज सीजन जैसे ही वेरी करेगा प्लांट्स की क्वालिटी क्वांटिटी पे इम्पैक्ट होता है। सो वी ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइम। इसलिए फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ plants of a given area or time, generally naturally occurring indigenous। ये वर्ड जो है indigenous, ये क्या है? It is endemic to that, वहीं का है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति वहीं हुई है, हम कहीं बाहर फॉरेन कंट्री से लाकर उसको नहीं प्लांट किया। तो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है तो जनरली फ्लोरा इसी को माना जाता है। ओके, एंड अगेन द नेक्स्ट वर्ड इज फाउना। तो उसी तरह से सम टोटल जो एनिमल का है एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज फॉर्मिंग द फाउना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो कॉपी पेस्ट करने। सो इट इज द एनिमल्स, फाउना इज द एनिमल। अब इस तरह के स्टडी को जो ऊपर वाला है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फ्लोरिस्टिक, और फाउना के स्टडी को फाउनिस्टिक। और जो टोटलिटी में हम लेके चलेंगे फ्लोरा एंड फाउना टुगेदर, इट इज कॉल्ड द बायोटा। ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, फाउना और फ्लोरा जो वहाँ का है, इससे भी हम कुछ हद तक हेल्प ले सकते हैं अपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। देन मैनुअल एंड मोनोग्राफ, टू मोर थिंग्स, ये दोनों भी टैक्सोनॉमी की एड्स हैं, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। मैनुअल होता है जब आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं, जैसे प्रॉन, प्रॉन में बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारे स्पीशीज। अब एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ लिखा, उसमें उसका पूरा हैबिटेट और उसके एक्सटर्नल फीचर्स, फिर उसके इंटरनल फीचर्स, फिर उसके बाद उसका कैसे फीडिंग होता है, उसका एलिमेंट्री कैनाल किस तरह का है, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस कैसे हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ अगर वो लिखते जा रहे हैं, देन इट इज़ अ मैनुअल। सो इट इज़ टॉकिंग स्पीशीज specific things. So manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. इस तरह से जब वो लिखा हुआ है तो आप जब मैनुअल उठा के देखोगे, you will be able to identify certain animals at the level of the species. और जब मोनोग्राफ की बात करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट ए टैक्सॉन, एक यूनिट का इंफॉर्मेशन है। तो उसमें बहुत सारे स्पीशीज आ जाएंगे, फिर बहुत सारे जीनस आ जाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको एक एक लेवल पे मिलेगा, जैसे फैमिली लेवल पे, जीनस लेवल पे। ओके, तो देयर एक्चुअली इट इज अबाउट ए टैक्सॉन। तो एक एक करके अगर आप मोनोग्राफ उठाओगे तो हो सकता है कि एक मोनोग्राफ आपको पूरे पैंथेरा के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो पैंथेरा के बारे में बता रहा है, मतलब आपको क्या क्या मिल रहा है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, सभी के लिए इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल रहा है ना। तो दीज आर सम ऑफ द टैक्सोनॉमी एड्स which help us in identifying the organisms. तो जो लोग नए हैं उनको चीज़ें समझ में आई, अब उस दिन के क्लास की चीज़ों को आप उससे को रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखें, बिकॉज इसके बिना पढ़ाई अधूरी है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है, केवल पढ़ते चले जाइएगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज। हम मिल जाएंगे, उसकी हम बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो। इन कंपैरिजन टू जीनस विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर, तो स्पीशीज जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है कैरेक्टर में, इसलिए स्पीशीज।
The correct sequencing of taxonomic categories is first one species, then genus, then order, then phylum. ठीक है? First step in taxonomy is identification. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Next, हाँ नहीं, दो म्यूचुअल बोल रहा है कि एक अगर हो तो दूसरा भी होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, म्यूचुअल. Next, families are characterized on which of the following features of plant species? Vegetative and reproductive parts. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body. Metabolism. Cell division occurs dash in plants and dash in animals. A. Fungi, filamentous algae, planaria, all easily multiply by fragmentation. फंजाई में जब आप माइसीलियम देखोगे, ठीक है, तो उसका फ्रेगमेंटेशन करोगे तो वो इजीली जो है वो ग्रो करता रहेगा. Then which of the factors affects reproduction in seasonal breeding plants and animals? Photoperiod. सबसे important photoperiod. वाटर यहाँ पे है इसलिए, अगर ये ह्यूमिडिटी होता तो हम इसको all of these मानते. The keys are based on contrasting characters generally in a pair called couplet. The order generally ends with Aves. ठीक है, ऑर्डर एव्स में, एव्स प्लांट के साथ. लेकिन जब आप एनिमल किंगडम में देखोगे तो हो सकता है वहाँ पे एव्स ना हो, पर जब हम चॉइस देख रहे हैं तो वहाँ हमें जो सबसे अप्रोप्रिएट मिलता है हम उसी को करेक्ट करते हैं. Then which of the following are unique features of living organisms? All of the above. ज़्यादा चला Which of the following aspects is an exclusive characteristic of living things? Increase in mass from inside only. बाकी कोई भी appropriate answer नहीं है. देखो B में क्या है? Increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internal. हमारे ऊपर धूल डाल दो, मेरा वेट ले लो, बोलो मेरा ग्रोथ हुआ है, तो नहीं है ना, तो इसलिए वो इनकरेक्ट है. और isolated metabolic reaction occur in vitro. आइसोलेटेड क्यों होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन जब भी होगी तो एक दूसरे से लिंक्ड होगी, कभी भी आइसोलेशन में नहीं होगा. एक जगह कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो उससे जो चीजें निकल के वो जाके फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करेगी. तो एक तरफ एनाबॉलिज्म होगा, एक तरफ कैटाबॉलिज्म होगा. ठीक है, तो वो कभी आइसोलेटेड सिंगल नहीं हो सकता. जब भी वो होगा तो इंटरैक्शंस नहीं होगा. और बी जो है वो करेक्ट आंसर है. सी परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी. करेक्ट है, बट नॉट ऑलवेज दैट मेमोरी स्टेज. देयर आर स्पेसिफिक सेल्स व्हिच कैन एक्वायर दिस मेमोरी. हमेशा मेमोरी में चीजें हो सकता है कि नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से जो एप्रोप्रिएट
है सबसे, वह इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली. Then which of the following term is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth? Biodiversity. ICBN. Binomial nomenclature means one scientific name consisting of a generic and a specific epithet. Herbarium is A. C. The famous botanical garden Q. ठीक है, तो इस तरह का कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, तो आपका थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज है उसको भी एनहांस करते रहिएगा. जब भी टॉपिक पढ़िएगा तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा उसमें आप ढूंढिएगा. जैसे मैंने कहा ना कि बोटानिकल गार्डन की लिस्ट, जूलॉजिकल गार्डन्स की लिस्ट, जूलॉजिकल पार्क्स की लिस्ट. ओके. Which of the following taxonomic aid provides information for the identification of names of a species found in an area? Species to manual. Which one of the taxonomic aids can give comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time? ठीक है, क्योंकि ये एक टैक्सॉन है. ठीक है. Which one of the taxonomic aids can give comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family? तो एक जीनस एक टैक्सॉन हो गया, या फैमिली एक टैक्सॉन हो गया, एक यूनिट हो गया, और जब उसका कंपाइलेशन है तो वो मोनोग्राफ होगा. ठीक है. Which one of the following taxonomical aid is used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities? Next. So it is to facilitate identification of unknown organisms. Taxon is a systematics refers to the identification and classification of plants and animals. Keys are generally dashed. So it is analytical. हम एनालाइज कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को. ठीक है. So it is analytical. Each statement in the key is called. Which of the following is not a characteristic of life? ये क्लास 6, 7 के बच्चे सॉल्व कर दिया. तुम लोग गलत कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना. एक स्टोन हम लेते हैं, उसका भी कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है. ये इसका भी कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है. उसके बाद में ये फिजिकल रूप ले रहा है. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन. स्टोन लो, ओर ले लो, है ना. आयरन ओर कितना कॉम्प्लेक्स है, बट लाइफ नहीं है. In printed scientific names, only the dash is capitalized. Each category of taxonomic hierarchy refers to as a unit of. Unit of classification. Which of the following statements are correct? Only living organisms grow, plants grow only up to certain stage, and the growth in living organisms is from inside. All of the above. All of the above. Which one of the following is not a correct statement?
नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं होते हैं, हो सकता है, ठीक है, बट उससे केवल उसको म्यूजियम में नहीं बना। म्यूजियम का मेन मतलब क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनको किसी तरह से प्रिजर्व करके रखा जाए। Which two points are known as the twin characteristic of growth? इंक्रीज इन मास सही है, तो जहां भी 1 है वो होगा, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सही है, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है? So 1 and 3 तो D है, ठीक है, क्योंकि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ का पूछा है, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? मास और नंबर, ठीक है। Then taxon and category are different things. Category shows hierarchical classification. 2 स्टेटमेंट है, इसके बारे में नीचे लिखी हुई चीजों को आप देखिए और बताइए कौन सा सही है। इसमें टैक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, ये सही है। कैटेगरी शोज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ये भी सही है, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ठीक है। तो उस तरह से स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। Which of the following statements regarding nomenclature is correct? इसलिए अभी किसी ने ए बोला, पहला देखा और सही है, तो ये गलती बहुत जरूरी है। ऑप्शंस को अच्छे से जरूर देखिए बिफोर यू आंसर। समटाइम्स वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज भी रहता है। Which of the following statements are correct about herbarium? All of the above. Which of the following statements regarding growth is incorrect? ये भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, करेक्ट कि इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है? क्योंकि प्लांट में ऑलमोस्ट हमेशा होता है। Which of the following statements is are correct for metabolism? पहले में क्या लिखा? फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन गलत है, ठीक है। All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism, so that is correct. Which one of the following statements is correct about biodiversity? All of the above. Which of the following statements are not correct? Lower the taxon, more characteristic the members within the taxon share. ठीक है, तो टाइम ओवर हो रहा है, अब फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। Just wait, just wait.